السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ اسلام آباد میں پیپر ملبری یا جنگلی توت دراصل جارحانہ اور الرجی پیدا کرنے والا درخت بن گیا ہے۔ نر درخت ہوا میں ہلکا گردہ چھوڑتے ہیں جو دمہ اور الرجی کے مریضوں کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اسے جارحانہ پودے کے طور پر رپورٹ کیا گیا ہے، جس نے حیاتیاتی تنوع اور ماحولیاتی خدمات کو متاثر کیا ہے۔ اسلام آباد میں گرد کے ذرات کی شرح 45,000 ذرات فی مکعب میٹر تک پہنچ گئی ہے، جو دنیا کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ ہے، جس کے باعث سانس اور دمے کے مریض کو شہر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے اور اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال بھی جاری ہے۔ عدالت اور انتظامیہ نے اس پر اقدامات کی ہدایت جاری کی ہیں، جن میں 2009 میں ہائی کورٹ اور 2024 میں سپریم کورٹ کی جانب سے شہری صحت اور ماحولیاتی تحفظ پر زور دیا گیا۔ اب تک 29,115 پیپر ملبری کے درخت ہٹا دیے گئے ہیں اور 40,000 مقامی درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے تحت 3-1 پالیسی کے مطابق ہر ہٹائے گئے درخت کے بدلے 3 مقامی ماحول دوست درخت لگائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 1960 کی دہائی میں چین سے لایا گیا یہ درخت شہر میں فوری سبزہ اور ہریالی کے لیے متعارف کرایا گیا۔ 1960 سے 1970 کی دہائی میں بیچ ہیلی کاپٹر سے بکھیر کر شہر بھر میں اس کے پھیلاؤ کو تیز کیا گیا۔ ابتدا میں یہ درخت تیزی سے بڑھنے، سایہ فراہم کرنے اور کاربن جذب کرنے کے لیے فائدہ مند قرار دیا گیا، مگر بعد میں مقامی نباتات کو پیچھے دھکیلنے، انفراسٹرکچر اور نالوں کو نقصان پہنچانے جیسے مسائل سامنے آئے۔ پیپر ملبری جیسے مقامی طور پر جنگلی شہتوت بھی کہا جاتا ہے تیزی سے بڑھنے والا درخت ہے۔ اس کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اس کی نر اور مادہ اقسام الگ ہوتی ہے اور نر درخت ہوا میں بہت ہلکا اور دور تک جانے والا پولن چھوڑتا ہے، جو الرجی اور دمے کے مریضوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں بڑی مقدار میں گرین ایریاز کی سوچ موجود تھی، مگر جب شہر نے عملی شکل پکڑی تو فوری سبزہ، سایہ اور گرین امیج بنانے کے لیے ایسے درخت ڈھونڈے گئے جو جلدی سبزہ دے سکیں۔ یہ درخت کب اور کیسے اسلام آباد آئے؟ 1960 اور 1970 کی کہانی سے متعلق بتایا جاتا ہے۔ متعدد معتبر رپورٹس کے مطابق پیپر ملبری 1960 میں چین سے اسلام آباد لایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ نئے وفاقی دارالحکومت میں تیزی سے اس حوالے سے کام کیا جا سکے۔ پھر 1960 میں شہر کے اوپر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بیج بکھیرنے کا ذکر بھی کہیں ملتا ہے، جس سے یہ شجرکاری منظم پودے لگانے سے بڑھ کر وسیع پیمانے پر پھیلاؤ میں بدل گئی ہے۔ بعد میں رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ 1970 میں اس کی گھنی شجرکاری کی گئی۔ اس دور میں اسلام آباد کو کم درختوں والا علاقہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے تیز رفتار حل بھی اپنایا گیا ہے۔ اور اس کے فوائد کیا تھے اور پھر یہ مسئلہ کیوں بنا، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ابتدا میں پیپر ملبری کے کچھ واضح فوائد تھے۔ بہت تیزی سے بڑھتا ہے، سایہ دیتا ہے، سڑکوں اور گرین بیلٹس کی شکل جلد بناتا ہے اور شہری گرینری کو فوری کینوپی فراہم کرتا ہے، اس لیے اسے ایک وقت میں شہر کی خوبصورتی اور کاربن سنک جیسے مقاصد سے بھی جوڑا گیا۔ مگر مسئلہ یہ بنا کہ یہ درخت اپنے غیر مقامی ماحول میں انویسو ہو گیا، یعنی اس نے مقامی نباتات کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ پانی اور نمی کی تلاش میں اس کی جڑوں سے شہری انفراسٹرکچر، نالوں اور لائنوں کے مسائل کی شکایات بھی سامنے آئی۔ یہی پیٹرن دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ یورپی اداروں نے بھی اسے صحت کے لیے مضر صحت قرار دیا ہے اور اس متعلق مختلف رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کے اصلاحات اور اس سے بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیراعظم نے رواں برس پالیسی فریم ورک میں تفویض کردہ اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم نے ہدایت کر دی کہ پاکستان میں جوہرات اور قیمتی پتھروں کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ ترجیحی بنیادوں پر جیولوجیکل سروے سے ذخائر کے جغرافیے اور مالیت کا تعین کیا جائے۔ اس امر میں تمام متعلقہ ادارے، صوبائی حکومتوں اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت یقینی بنائی جائے۔ بین الاقوامی معیار کی لیبارٹریز اور سرٹیفیکیشنز کے نفاذ کے لیے فوری اقدامات عمل میں لائے جائیں۔ پالیسی فریم ورک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ماحول کی فراہمی کو اولین ترجیح دی جائے۔ رواں برس میں ملک میں جیم سٹونز سے متعلقہ 2 مثالی سینٹرز آف ایکسیلنس کا قیام عمل میں لایا جائے۔ پاکستان میں جیم سٹونز کے ذخائر کے مقابلے میں برآمدات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نجی کمپنیوں بالخصوص نوجوان آنٹرز پر نیوز کی شعبے میں حوصلہ افزائی کی جائے۔
नौजवान एंटरप्रेन्योर्स शोबे में हौसला अफजाई की जाए। पाकिस्तानी कीमती पत्थर दुनिया भर में अपने म्यार के हवाले से मकबूल हैं। स्मगलिंग के सदेबाब और कानूनी तरीके से बरामद से अरबों डॉलर्स मुबादला का हसूल यकीनी बनाएंगे। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में जवाहरात और कीमती पत्थरों के ज़खायर, शोबे के इस्लाहात, बरामदात में इजाफे और जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज पर आला सतही इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के ग्रुप के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुअस्सर मुआशी ताउन और सरमायाकारी की सिमत बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान गहरे देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं जो बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि हालिया आला सतही रवाबित और तबादलों से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के निजी शोबों और सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ है और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए एक मजबूत बुनियाद मुयस्सर आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल जिद्दत, ब्लॉकचेन और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस ताउन को खसूसी अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया। सजवानी ग्रुप के वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और माशी शराकत दारी के मौक़ों पर मज़ीद ताउन करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के एहसास में ज़ोहराना भी दिया। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र में सालाना 16.5% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब 59 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। माली साल 26 की पहली छमाही में तरसीलात ज़र सालाना 11% बढ़कर 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुआ। गुज़श्ता माली साल की पहली छमाही में तरसीलात ज़र 17 अरब 85 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर 2025 में सऊदी अरब 81 करोड़ 31 लाख डॉलर तरसीलात ज़र के साथ सर फहरिस्त रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से तरसीलात ज़र की मद में 72 करोड़ 61 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 55 करोड़ 97 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रियासत मुत्तहिदा अमरीका से 30 करोड़ 17 लाख डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। यूरोपीय यूनियन से दिसंबर में 49 करोड़ 93 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। माहाना बुनियादों पर मजमूई तरसीलात ज़र में 13% नमू हुई। नए बजट 2026-27 की तैयारियां शुरू। तजावीज़ तलब, तरजीहात तय, बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीह करार दी गई है। हुकूमत ने बिजनेस सेक्टर से 30 जनवरी तक बजट तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक टैक्स पॉलिसी अब FBR की बजाय वजारत ख़जाना तैयार करेगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को टैक्स इस्लाहात की मुकम्मल जिम्मेदारी दे दी गई। बजट साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला, तरजीहात भी तय। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक बरामदात बढ़ाने और गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई तरजीह है। नए बजट में सनतों पर टैक्स बोझ कम करने पर गौर। हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग और सनती तरक्की को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। IT और डिजिटल मईशत के फरोग के लिए टैक्स सहूलतों पर गौर किया जा रहा है। माहौल दोस्त और सस्ती तवानाई मनसूबों को तरजीह करार दी गई। ख्वातीन की मुलाजमत और नौजवानों के रोजगार पर तवज्जो दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह की रिहाइश का आमद। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह हिदायत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर कौमी असम्बली का सैयद खुर्शीद अहमद शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। स्पीकर सरदार एयाज सादिक की सैयद खुर्शीद शाह की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने कहा कि सैयद खुर्शीद अहमद शाह कौमी असम्बली के कोहना मश्क और मुतहरिक रुकन कौमी असम्बली हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह को जल्द सेहतियाब होकर कौमी असम्बली की कार्रवाई में भरपूर किरदार अदा करने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने उनकी खैरियत दरियाफ्त करने पर स्पीकर कौमी असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी बराए जायज़ा और अमल दरामद का कन्वीनर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक साल 2001 से 2019-20 तक मुख्तलिफ सालों के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा। पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की NTC से PTCL को गैर मजाज मुंतकली से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात भी सामने आए। FIA हुकाम ने बताया कि 2022 में हमारी इंक्वायरी रजिस्टर हुई थी। इंक्वायरी का क्लोज कर दिया गया। कमेटी ने इंक्वायरी क्लोज होने पर ऑडिट एतराज़ात निपटा दिए। कमेटी ने महकमाना अकाउंट्स कमेटी की सिफारिश पर 10 ऑडिट एतराज़ात निपटा दिए। कमेटी ने कुछ ऑडिट एतराज़ात जायजा लेने के बाद निपटा दिए। कमेटी ने 5 ऑडिट पेरास आइंदा मीटिंग के लिए मौखर कर दिए।
वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क डिफॉल्ट के धाने पर खड़ा था, हमने बचा लिया। स्टॉक मार्केट आए रोज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। एक वक्त था जब बदतमीजी और अना की सियासत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा कर दिया था। आज दुनिया पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। खैबर पख्तूनख्वा पर नाअहल और बुज़दिल लोगों की हुकूमत मुसल्लत है। एक सूबे के वज़ीर का दूसरे सूबे की खातून वज़ीर पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ नारे, अशार और तकारीर गवर्नेंस का मुतबादिल नहीं होती। यूनिवर्सिटी बनाना मुश्किल, टोपी पहनकर शेर पढ़ना आसान है। अगर ये इतने बहादुर हैं तो दहशतगर्दों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? TTP पाकिस्तान के दुश्मन है, आखिरी दम तक इसका ताक़ुब किया जाएगा। और ऐसे में कारोबार ठप हो जाएं, एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, एलसीयां खुल ना रही हों, मुल्क के अंदर एक हिजानी कैफियत हो और शर्तें लग रही हों कि जी आज डिफॉल्ट हुआ कि कल डिफॉल्ट हुआ, तो ज़रा एक मिनट के लिए सोचना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह हमारे सियासी हरीफ ये कहते हैं और ये इस ख्वाहिश का इजहार करते रहे कि ये डिफॉल्ट हो जाए, तो अगर डिफॉल्ट होता तो क्या होता? ये हमारी आंखों के सामने ये मनाजिर होने चाहिए। डिफॉल्ट के दहाने से जो ये मुल्क अब एक इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर आया है, या हमारी स्टॉक मार्केट रोज बरोज रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्री का, ताजरों का एतमाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कराची पहुँच गए। सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने वज़ीर आला KP का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी और साथ आने वाले कबीना के अरकान को सिंध की रवायती टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कराची पहुँच गए। सिंध हुकूमत की जानिब से वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने वज़ीर आला के इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी और साथ आने वाली काबीना के अरकान को सिंध की रवायती टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एयरपोर्ट से बाहर आने पर PTI के रहनुमाओं राजा अजहर, हलीम, आदिल शेख ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से इंसाफ हाउस ले जाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि ट्रंप को चाहिए कि वो अपने ही मुल्क के मसाइल जैसे इक्तिसादी मुश्किलात, सियासी कश्मकश और अंदरूनी चैलेंजेस पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि वो ईरान के मामलात में ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह किया कि ईरान खारजी दबाव या धमकियों के सामने नहीं झुकेगा और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेगा। उनके मुताबिक ईरान अपने नज़रियात और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीछे नहीं हटेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान के अंदर इक़्तिसादी बहरान और अवामी एहतजाज जारी है और अमरीका की तरफ से ईरान पर नज़र रखी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा है कि तेहरान और दीगर शहरों में होने वाली तोड़फोड़ मुल्क दुश्मन अनासर की कारस्तानी है। उनका कहना था कुछ अफराद ने अपने ही मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाया ताकि अमरीकी सदर को खुश किया जा सके। भारत में कौमी शूटिंग कोच को 17 साला नेशनल शूटर से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में शूटिंग के कौमी कोच इनक्वाश बर्दो को 17 साला नेशनल शूटर से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासरा शूटर ने दिल्ली में एक शूटिंग इवेंट के दौरान होटल में ज्यादती का इल्जाम आयद किया। हरियाणा पुलिस का कहना है कि मुतासर लड़की के अहले खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कोच को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने होटल के CCTV फुटेज तलब कर ली, जबकि शूटिंग एसोसिएशन ने कोच को मुअत्तल करके तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। भारत में कौमी शूटिंग कोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटिंग कोच को 17 साला नेशनल शूटर से ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और इस मुताबिक आपको आगाह करें कि भारतीय पुलिस की जानिब से यह कार्रवाई की गई है। शूटिंग कोच को 17 साला नेशनल शूटर से ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।